because even I want to know lots about this show, like everybody out here. Gaurav, would like to start with you. Hotstar Special has had a fantastic journey so far, some great content coming up, and now with this new promising show, which is Special Ops. How does it fit into, Hotstar Special's philosophy? It blows it up. I think it's an amazing, exciting trailer. So happy and excited to be here today with the awesome cast and crew of Special Ops. This is a big idea, and I'm so excited that this journey in some ways is complete today personally for me. I've been a big fan of this kind of work, and there are a lot of these international series on terrorism that have always inspired me and made me think, when in India can we do television like this? And I've spent all my life working in TV, and I have a confession to make. I think I became a fan of Neeraj Pandey when I saw A Wednesday, and I thought, wow, what a bold, amazing, brilliant idea. And I met Neeraj and Sheetal 10 years ago, and they came with a very, very interesting idea, with a really bold and big idea. I think that's how they think. And the idea was so vivid and so bold that 10 years later, I still remember it. But at that time, I felt, perhaps wrongly so, that we don't really have what it takes to make TV like that. And in some ways, I'm so happy and delighted today that this story is complete and I have some role to play here. And bring this idea alive for all of you. Just one more thing. I think about 18 months ago, all of us met again in the Star office and with Uday. And Neeraj shared just one line on this, right? Just one line. And that line has also kind of stayed and changed. But on that one line, right? We look forward to 17th March as to what that one line is actually going to bring out, and we look forward to that power-packed show. Well, Sheetal, what we would like to ask you that क्या अलग है Special Ops के बारे में? What does make this show stand out? Make the show stand up. Stand out, yeah. I think Neeraj's writing, it's a magnum opus for us. We've given it sweat and blood, all our actors, as well as, I would actually like to first thank Uday and Gaurav, because like he said, 10 years back we went and he said, no, I don't think this is going to happen. And the moment the digital platform came and Hotstar was announced, I think he was the first ones to call us and they said, okay, let's do something now. And like he said, one line, and they backed us up, gave us complete freedom to do whatever we wanted to do. And it's been a wonderful journey. Vision was one line, as Gaurav said, to begin with. अब वन लाइन में कितना चेंज हुआ मेरे को पता नहीं है क्योंकि वन लाइन में क्या चेंज कर सकते हो बट when we started working on Special Ops, the agenda was to tell a 7.5-hour, 8-hour story, and obviously you can't fit it into one film. So the basic reason why we wanted to chase this particular idea was because it was big, and big not only in terms of scale and scope, big in terms of its heart. कास्ट की जुबानी सुनना चाहेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था. तो आई होप द माइक्स आर गॉन बैक. गुड टू सी ऑल ऑफ यू. के जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे. यू हैव द माइक फ्रॉम. हेलो. स्पेशल ऑप्स के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे, और खास करके आपके किरदार के बारे में. किरदार का नाम हिम्मत सिंह है. वो चीफ एनालिस्ट हैं RNW में, और उसकी अपनी एक थियोरी है जो 19 साल से जिसका वो निवारण ढूंढ रहा है, और 19 साल के बाद 8वें एपिसोड के एंड में उसे मिल जाता है. Look forward to that suspense.
Waiting for the 17th of March. That's the हाँ, date. 17th of March. Yes. हॉटस्टार वीआईपी पे स्पेशल ऑप्स। हमसे कहा गया है कि बार बार इस चीज़ को बोला जाना चाहिए, हम बार बार बोलेंगे, बुरा मत मानिएगा। अभी ये मूंछों के साथ, अच्छा वहाँ, हाँ वो एक्टिंग का हिस्सा है भाई, उसी के हम कमाते हैं। बीवी के सामने भी ऐसी लगता है। जी जी, बीवी के सामने भी ऐसी यहाँ लगता यहाँ है। परमीत जी, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। वो अंदर की बात डिस्क्लोज करें यहाँ पर। दिव्या जी, गुड टू सी यू अगेन। यू नो, हमने आपको देखा बेहतरीन से बेहतरीन कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हुए। फिर से एक बार, एक इम्पैक्टफुल रोल है। व्हाट्स स्पेशल अबाउट दिस एक्सपीरियंस? This is one unit, this is one director, and Shivam ji has been the first one. I mean, it's my first time working with him, but with Neeraj ji, I think it's my second. Special Chabbis was the first one, Special Ops is the second one. I think I'm going to sign a contract with him. Every title should be starting from Special, so I can be a part of all that. But sincerely, sometimes, just sometimes, you just leave your thinking hats aside and you just go and feel the magic of the set. And this unit for me, Friday Filmworks and Friday Storytellers, is one of those for me. I just come because I know everything is so well researched, well written, well executed. All I have to do is just feel it the way they want me to feel it. And I think it's the most nail-biting experience, not just as an audience, but while performing as well. So I remember my brother telling me, यार इतनी excitement और anxiety तो 10th के results में नहीं होती जितनी इनकी काम देखकर होती है कि अब next क्या होने वाला है. While shooting it, I felt that because there was so much happening on the set, and all you require to do is, it's so clear, he's so clear what he wants from his actors, that all you do is just go there, do your bit, and then see the others perform, and then just complement each other. It's just an amalgamation of lots of things coming together and making magic out of special ops. Absolutely. Indeed, he's very clear, and you always do an impeccable job to the character given to you. Thank you so much. So thank you so much. Experience of traveling, I'm a travel junkie. मैं बहुत enjoy करता हूँ, and I want to thank the production house, Neeraj bhai, Sheetal bhai, for giving this opportunity. सबसे पहले, immense production values. I think we all worked really hard, and especially under his directions. बहुत मज़ा आया, मतलब ऐसी locations देखने को मिली कि मेरे अंदर का जो travel junkie है, बहुत satisfied हो गया और expect कर रहा है कि जल्दी से कुछ और इनके साथ मिले और जगह घूमने को मिले. पहली बात तो आई थिंक स्टार के साथ मेरा कोई रिश्ता है. आई स्टार्टेड माय करियर विद स्टार, एंड ironically one of my biggest moves, which is for special ops with Neeraj sir, has also happened on Hotstar. So I think I've been blessed like that. The experience was fantastic. You know, it was very easy when I did get through the auditions that I'd done, and you know, the show's on espionage. It is directed by Neeraj sir. He owns this genre, so it was a no-brainer, and I was always looking for a part where I could really showcase the arc of what I wanted to do, and this character really allows me to do that. And credits to Neeraj sir's writing, that there are so many facets to my character Farooq that I really had a very wholesome experience as an actor. So it was a lot of fun. और स्टार के साथ तुम्हारा यकीनन नाता है, because जी. you are yourself a hot star. You're just being kind. Thank you very much. Absolutely. Honest. So thank you so much and all the best. Sana Thank you. Khan, कैसी हैं आप? Good to see you again. Yeah, hi. Hi. पहले तो I love your TikTok videos. You're damn cute there. So I have to say, you know, from cute TikTok videos to television to movies, all of that, and now cut to hardcore action show. How was your experience? My heart is racing right now. I wish I could make you guys hear it. It's to begin with, it's a pinch me moment for me. I still can't believe I'm standing right here with such talented actors. I don't even know what I'm doing here, to be very, very honest. Thank you, Neeraj sir, to see myself here on this poster. Indeed, an emotional moment, and why not? Because it's a biggie, and wishing you all the very best, Sana. Happens, we're humans. Absolutely happens. Right. Would like Parmeet ji. Namaskar, good to see you. And you know, you've dabbled with Bollywood movies. We've seen you there. And how come the show on
Hotstar, and how come Special Ops? Well, there's only one answer to that. That is Neeraj Pandey, because as a director, but more as a writer, I really admire him. I think the kind of writing that he does is very rare to come by, and that's the reason. The moment that got that call, I said, "Come what may, जो भी role होगा, मैं definitely करने वाला हूँ." So yeah, that's. Thank you, and we look forward to it. Thank you. Yes, Gautami. Mike, there. So everybody is thanking Neeraj sir and Shivam sir, but मुझे एक complaint है sir. मतलब सबसे आपने एक्शन करवाया और सब सारे एजेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन जो हिम्मत सिंह की वाइफ है उससे आपने कोई एक्शन नहीं करवाया सर. तो मतलब I mean, I was waiting जब फ्राइडे फिल्म वर्क से फ़ोन आया, मैंने बोला अरे कोई एक्शन, थ्रिलर, एस्पियोनाज, I love it. And then there's no action for the wife. I'm like, okay, all right, I'll wait. So sir, please keep this in mind for season 2. Thank you. But they've given it the home ministry. Yeah. Sajjad. Yes. We've seen you in Tiger Zinda Hai, phenomenal performance, and now an intense character. What do we expect? You have to see the show, I guess. Yeah, but just a little sneak peek would be nice too for the I guess friends from the media. I can't much say about it. He's a businessman who get involved in this long manhunt, so he's looking for his benefit in every deal he does, so that's all I can say about the character. It's very clear. So I guess I didn't do anything in this job, to be honest, in this project, because Neeraj ji was there, he was telling me what to do and how to react. I just delivered the line, all the things, and that's all. And this is my second work with Neeraj ji. Of course, first one was with Baby. I have to say that all the time. It was my first project in Bollywood. The best part is for that role, I did, I don't know how many auditions, 6, 7. I don't know if any of those videos reached you. Never, no? So my agent was keep calling me, okay, they need better. He's a big director, they never said the name. So I keep making videos, and this, I got bored. So I guess, please tell me if I get selected or no. And I keep making videos. I don't know how many auditions I did for that. And amazing, none of that reached you, yeah. And then for this job, such a big role, I did only one audition. I got the job. And you've delivered everything brilliantly that we saw in the trailer, and we look forward to the launch on the 17th of March. And all the best. Thank you. Meher. सबसे लास्ट में मैं फंसी हूँ. क्योंकि ये पहली बार है कि आपको हम एक एक्शन शो में देखने वाले हैं. हाँ. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टू डू एन एक्शन पैक्ड शो? बहुत ही डरावना था क्योंकि एक्शन करते हुए बहुत डर लग रहा था. जिस दिन हम शूट भी कर रहे थे, आई थिंक फर्स्ट शॉट में ही मेरे हाथ पे बहुत ज़ोर से लग गई थी और मुझे लगा कि भाई तूने पंगा ले लिया साइन करके, तेरे से नहीं होने वाला. बट समहाउ नीरज सर वाज देयर एंड उन्होंने शॉट्स बहुत उतनी ही लिए जितनी ज़रूरत थी, तो मैं एग्जॉस्ट नहीं हुई और समहाउ करवा लिया सर ने. आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, बट एक्सपीरियंस वाज सुपर्ब. सर के साथ हमेशा काम करना था बहुत पहले से, तो एक ड्रीम पूरा हो गया. और हाँ, मैं डिफरेंट लाइट में दिखूंगी जैसे मैं पहले कभी नहीं दिखी. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सर. Thank you so much, sir. I'm really grateful that you cast me in the show. Thank you, Shivam sir. Thank you, Neeraj sir. A big shout out to Girl Power to see a girl in action, Thank you. and it's going to be a treat to actually watch such a cute face doing action. Oh, thank you. Totally. Thank you. Wish you all the best to the entire cast. Let's have a huge round of applause. And yes, Freddy Filmworks, make some noise. ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा. जैसे कि आप जानते हो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतना बड़ा शो है और इतने बड़े डायरेक्टर है. ऑनेस्टली अपने आप को नीरज पांडे जी का नाम लिखा और बाजू में मेरा फ़ोटो लगा है, वो
इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टू मी एंड एक्चुअली मैं बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहती थी पर मैंने खुद को भी एम्बैरस कर दिया। बोलिए ना। हाँ, और तभी भी बट ऑब्वियसली यू नो स्पेशल, जैसे वेब का नाम स्पेशल ऑप है वैसे ही मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट है और मेरे लिए ये वेब बहुत स्पेशल रहेगा हमेशा। मतलब मैं एक्चुअली इतने सालों से दुआ कर रही थी कि मुझे इनके साथ काम मिल जाए, तो लगता है दुआ पूरी हो गई फाइनली। और आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड व्हेन आई गॉट अ कॉल फॉर दिस वेब, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने पहले ही अपना मन बना लिया था कि चाहे वो मुझे जो भी नरेट करे मैं उसके अंदर कुछ भी हूँ, मैं ये वेब कर रही हूँ। और मुझे इतना याद है कि मैं गई और मैं नरेशन सुन के आई और मैं अंदर ही अंदर सोच रही हूँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ ये वेब मत टाइम वेस्ट करो मेरे पीछे, मुझे मत सुनाओ। और मैं इतनी लॉस्ट थी कि मैं घर वापस आ गई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो वेब का नाम ही नहीं पता है। फिर मैंने वापस उन्हें कॉल किया, मैंने कहा अच्छा वेब का नाम क्या बोले, स्पेशल ऑप। मैंने कहा अच्छा। सजाद, आप बताइए, आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। लोग जैसे कि आपने कहा दिस इज योर सेकंड प्रोजेक्ट, बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। नीरज की इट्स मैन ऑफ नॉलेज कि थोड़ा नीचे रखो। आप डिस्कस करें। तो इट्स अ मैन ऑफ नॉलेज नीरज जी, एंड ही इज़ वेरी क्लियर, और उनको इतना अच्छा पता कि ये कैरेक्टर से क्या चाहता है। तो वो जैसे वो एक्सप्लेन कर दिया मेरे लिए, तो अब उतना रिसर्च और मतलब मेहनत करना नहीं पड़ता, तो इसीलिए तो बहुत ही ईजी रहा काम करने में। नीरज जी के साथ मेरे लिए एक सपना था, बहुत तक सपना है। मैं 2 बार काम किया उसके साथ और हमेशा काम। सर यू नो सोशल मीडिया आपके लिए बहुत ही लकी साबित होता है हमेशा से, यू नो चाहे वो टिकटॉक पर हो या फिर अब ये सोशल मीडिया पर ये वेब सीरीज हो, क्या लगता है सोशल मीडिया के साथ एक अच्छा वाला कनेक्शन है, इसीलिए लकी साबित होता है आपके लिए? आई डोंट नो, आई थिंक कहीं ना कहीं जो लोग आपको जो आपका काम देखते हैं, चाहे वो मेरी रियलिटी शोज़ हो या मेरी मूवी हो या शायद ये वेब हो, इनसे कनेक्ट करके वो मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं। इसके लिए वो मेरे सोशल मीडिया को आके मेरा पेज फॉलो करते हैं ताकि वो मुझे जो फील करते हैं कमेंट लिख सके, ताकि मैं उनको रिप्लाई कर सकूँ और मैं जान सकूँ कि लोग क्या सोचते हैं काम के बारे में। सोशल मीडिया बहुत बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आज की तारीख में वो इतना पावरफुल हो गया है कि आप अपने जो इमोशंस है, जो एक्सप्रेशन है या कोई चीज़ को लेके जो मुद्दे हैं जिनके लिए आप स्टैंड करती हो, आप बिलीव करती हो, आप आपकी सोशल मीडिया के थ्रू यूज़ कर सकते हो। बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी फैब्रिकेट नहीं होगा। ये कहते हैं ना सीधी ज़बानी, जब आप लोग आपके मुंह से ही सुनेंगे कि आप क्या कहना चाहते हो। बिकॉज कभी कभी कुछ चीज़ें कुछ लोगों को बोलने डर लगता है, पता नहीं कैसे प्रेजेंट करेंगे, और यू नो उसी चीज़ को अगर आगे पीछे 1-2 एक्स्ट्रा वर्ड लगा दिया तो शायद सुनने में कुछ अलग लगेगा। तो इसके लिए आई थिंक सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात है, बहुत मज़ा आता है क्योंकि आप यू नो जब रेगुलर काम नहीं करते तो आपके पास फ्री टाइम भी होता है बहुत सारा, तो आप चाहते हो कि उसे यू नो ऑडियंस के लिए मैं कितना फ़ोटो डालूंगी, लोग फ़ोटो देख के बोर हो जाते हैं ना, तो इसके लिए मैंने कहा चलो वीडियोज़ बनाते हैं, छोटे छोटे कॉन्टेंट बनाते हैं। इसीलिए मैंने ये सभी टिकटॉक और ये सब करना शुरू कर दिया अपने दोस्तों के साथ, और ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की अगर बात करें तो आपने हर एक चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू हाँ। की है, तो कहने कि आपने पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ कहा है सोशल मीडिया पर मेल्विन को लेकर, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या कुछ रिस्पॉन्स आया है? वेल आई थिंक जो भी कहा है सच कहा है, और मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। और मैं बेवकूफ़ बन गई, मैं नहीं चाहती कोई और बेवकूफ़ बने। और ये मेरा अवेयरनेस हर उन लड़कियों के लिए है जो ये ऐसी सिचुएशन से गुजरती है और जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी है। बिकॉज जब मैं बाहर आई और जब लोगों ने मुझे टेक्स्ट करना शुरू किया, मुझे पता चला कि मतलब मुझसे भी दुखी बहुत लोग बाहर हैं। तो आई थिंक तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये बात सिर्फ एक छोटे से मुद्दे की नहीं है, बट असलियत बाहर लाने की है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई दूसरी सना खान इन द मेकिंग हो। दैट्स इट। थैंक यू। Yeah, thank you. So congratulations आपके के लिए, क्या कहना Thank you. आफ्टर टेलीविजन यू आर डूइंग तो बड़ा पर्दा ही आज दिखाई दे रहा है, क्या कहना है? नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ, यू नो, जस्ट वर्किंग विद नीरज पांडे ऑन एन एस्पिनाज थ्रिलर इट्स अ लॉट ऑफ फन। और आई थिंक हर एक एक्टर की इच्छा होती है टू डू एक्शन, और इस शो में बहुत सारा एक्शन है, बहुत बड़ा सस्पेंस है। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मैन हंट रही है 19 साल की, तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। इट्स हेडेड बाय हिम्मत सिंह, who hires me, who's my character, is Farooq Ali, to find this missing guy. And ये जो लंबी जर्नी रहेगी ये देखने लायक रहेगी। तो 17 मार्च को जब आएगा ज़रूर देखिएगा। आई रियली होप आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा। ट्रेलर अच्छा लगा, फील है, वाइब है, मज़ा आया। हाँ जी।
कैरेक्टर में पोर्ट्रे करते हैं? तो मेरे कैरेक्टर का नाम फारूक अली है क्या मटका के आपने पूछा है सही सवाल पूछा मेरे कैरेक्टर नेम फारूक अली है। ये एक रॉ एजेंट है जिसे एक बहुत छोटी उम्र में जो रॉ के हेड हैं हिम्मत, वो पकड़ लेते हैं और मतलब उस पर रिसर्च करने लग जाते हैं कि इस लड़के में कुछ है कि ये बड़ा होकर रॉ एजेंट बन सकता है। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मौके पर वो मुझे पकड़ लेते हैं जहाँ पर मैं मेरा जो कैरेक्टर है वो सुसाइड कमिट कर रहा है और वहाँ से वो मेरे को पकड़ के रॉ एजेंट की फील्ड में डाल देते हैं। ही ट्रेन्स मी एंड ही ट्रेन्स मी टू फाइंड दिस वन मिसिंग मैन that they have been finding for, I think at that time, 9 years. And that's the whole show and that's my character. That's as much as we can talk about it right now. You've seen the trailer. As far as my character goes, you know, रॉ एजेंट की एक यूजली एक हमारे माइंड में एक छवि रहती है कि रॉ एजेंट होगा, बहुत ही हार्ड होगा, टफ होगा, बॉडी होगी, बहुत ही स्लिक होगा। इनफैक्ट जब मैं नीरज सर से मिला तो उन्होंने मुझे समझाया कि जो रॉ एजेंट होता है वो जितना स्टैंड आउट करे उतना मुश्किल हो जाता है, जितना वो ब्लेंड इन करे उतना वो ज़्यादा अंडर कवर रहता है। तो दैट्स द प्रेपरेशन दैट आई रियली हैड टू गो थ्रू टू काइंड ऑफ अपने आप को जितना मैं टोन डाउन कर सकूँ, जितना यू नो लाइक जो एक बेसिक इमेज लोगों के माइंड में है मेरी एज कारण, उसको निकाल के कि आई लुक लाइक आई कैन ब्लेंड इन टू एनी बडी बिकॉज माई कैरेक्टर गोज थ्रू अ वेरी लॉन्ग आर्क. In that arc, he's constantly changing personalities, he's constantly changing names, identities. So to play each and every identity with flair is what I have to really work at. थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया. हाँ जी, जी. Right project. Absolutely, absolutely. There is no denying it. I was waiting for something exactly like this. I couldn't be more excited. I couldn't be more proud of this decision of mine, this moment today, and I'm just so happy क्योंकि इतने टाइम से हम सारे हाश-हाश हैं क्योंकि वी वांटेड कि एक बार पूरा प्रोडक्ट जब रेडी हो जाएगा तब जाके आप लोगों के सामने, दर्शकों के सामने लेकर आएंगे. और आज वो मौका आया है टू काइंड ऑफ डू द पोस्टर लॉन्च जो आज सुबह हुआ. आज आपने टीज़र देखा, ये पहला टीज़र है, ट्रेलर है. सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन. And talking about the cast, you know, the cast is so huge. How Right. much fun it is to work with a multi-starrer series like this. Do have a huge cast. It's a lot of fun, you know. It's fantastic how we've managed to get so many different actors to work on one project. क्योंकि वो बड़ा difficult होता है कि इतने सारे नामचीन एक्टरों को एक प्रोजेक्ट मिलाना. पर क्रेडिट गोज़ टू नीरज पांडे's राइटिंग कि हर एक एक्टर को उतना यकीन है कि मेरा जो भी पार्ट होगा शो में वो बहुत अहम होगा, शो से बहुत मायने रखता होगा. तो बहुत मज़ा आया. इनफैक्ट मैं ज़्यादा मज़ा नहीं कर पाया बिकॉज मैं हर दिन शूट कर रहा था अनफॉर्चुनेटली. और यू नो आई वाज कॉन्स्टेंटली, मैं एक सीन से दूसरे सीन में जंप कर रहा था. पर एक्टिंग का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा क्योंकि आपको बहुत सारे एक्टर्स के साथ, अलग अलग एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला. एक ही दिन में आई यूज्ड टू शूट with 4 different people. So when you shoot with that range, it's a lot of fun kind of exploring your own talent. Unfortunately, मैं जैसे के सर का बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे विनय पाठक जी बड़े अच्छे लगते हैं, दिव्या दत्ता मेरे को बड़ी अच्छी लगती हैं, परमीत सेठी बड़े अच्छे लगते हैं. बट मुझे इन सब के साथ काम करने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये इंडिया टीम है. ये इंडिया यूनिट में थे, हम सारे इंटरनेशनल क्रू यूनिट में थे. मेरे 2 सीन है के सर के साथ जो मुझे बड़ा मज़ा आया करने में. एंड या Thank you so Thank you very much. Thank you. Thanks. Okay, so start. Okay, so firstly, Divya, congratulations. The trailer looks so promising. Although हमें पता नहीं चला कि थोड़े से इसमें पता चला थोड़ा बहुत कि आप किस तरीके का किरदार उसमें निभाने वाली है. लेकिन आप बताइए कितना स्पेशल रहा आपके लिए कैरेक्टर प्ले करना, बिकॉज बहुत ही अलग कैरेक्टर है. जी बिल्कुल अलग कैरेक्टर है. एंड देयर इज अ रीज़न शी इज़ अ सरप्राइज इन द वेब एंड सो आई कांट रियली टॉक मच अबाउट इट. लेकिन आई एम सुपर्बली थ्रिल्ड अबाउट इट. और स्पेशली इसलिए ना सिर्फ कि रोल बहुत अच्छा है बल्कि इसलिए कि 7 साल के बाद मैं दोबारा नीरज के साथ काम कर रही हूँ और मेरे बहुत ही पसंदीदा डायरेक्टर्स में से एक. एंड स्पेशल 26 को भी बहुत ज़्यादा, 26 को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला था. जी. अब इससे कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आपको, क्योंकि यू नो स्पेशल भी यू नो उतना ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है. हाँ बट बिल्कुल अलग रोल्स हैं. When something is titled special, it has to be special, yeah. So it is very special for me. और इसमें मज़ा यह है कि मैं जब when I think about shooting for this, there's always a big smile on my face because ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ पर ना मैंने रोल पूछा
ना मैंने कहानी पूछी. Neeraj just called and said there's something nice for you. I said I'm coming. Because वो जहाँ आपको एक sense of belonging, एक sense of trust और एक sense of responsibility लगता है कि the director knows what he's getting for you, तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती. आप सिर्फ उस डायरेक्टर को as a parent follow करते हो and become a child. So it was great to be a child on the set. एंड कितना मुश्किल है, कितना इजी हो जाता है एक मल्टी स्टारर सीरीज या फिल्म हम जब करते हैं तो जी. कितना मज़ा भी आता है और कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट हो जाता है. मैंने कभी ऐसा नहीं देखा बाबा, क्योंकि मैंने हर तरह की फिल्में की, उनमें से बहुत सारी ensemble रही हैं. तो ऐसे तो घूमने का बहुत तरीका है. रीज़ारा कर सकती हूँ तो फिर, और उसमें से आज तक याद रखी जा सकती हूँ, तो फिर वो एक मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ मुझे लगा मैं बिल्कुल गुम जाऊँगी, लेकिन पीपल स्टिल रिमेंबर मी फॉर वीर ज़ारा. तो आई थिंक आप जितने मर्जी लोगों में हो, कहानी अगर अच्छी है, आपका रोल अच्छा है और आपने उसे बड़े दिल से निभाया, तो उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ आप देखें. अगर आप भी दिखेंगे तो कहानी कहाँ होगी. लेकिन अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने जितना भी कैरेक्टर्स प्ले किया, यू हैव बीन लव्ड फॉर इट. थैंक यू. अभी तक जितना भी आपने स्लीपिंग पार्टनर देखी? आपने शीर कोरमा का ट्रेलर देखा? गुड गुड. अभी बात करो. सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है आपको, तो कोई एक स्पेशल कनेक्शन है सोशल इससे प्लेटफॉर्म से? कुछ नहीं, लोग प्यार करते हैं. इट्स गुड. यही कनेक्ट बन जाता है. व्हेन पीपल लाइक यू, दे अप्रिशिएट यू, उनके रिस्पॉन्सेज आते हैं, उनका आप जवाब देते हैं. थैंकफुली आई एम नॉट ट्रोल्ड दैट मच, सो आई फील नाइस अबाउट इट. रोल मैम डरती तो मैं लाइफ में किसी से नहीं हूँ यार, पंजाबी हूँ. लेकिन खामखा की बैड न्यूज़ नहीं चाहिए ना. जिन लोगों को आप जानते भी नहीं वो आपको ट्रोल कर रहे हैं, इतनी अटेंशन टाइम क्यों दें किसी को? वो अपने पे बिताएंगे ना वो टाइम. ओके दिव्या मैम, जैसे कि हर एक पिक्चर एक दिल में एक एक याद छोड़ जाती है, तो इससे रिलेटेड कोई एक याद जो आपको हमेशा याद रहे शूट करने के टाइम पे, ऐसा कुछ याद रहो आपको? मुझे याद है कि इतने सीरियस सीन मैंने सारे हंसते हंसते किए हैं ऑफ द सेट. बहुत इन्जॉय किया और मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं क्या कर रही हूँ. एंड देन व्हेन आई सॉ इट ऑन स्क्रीन, आई वाज ब्लोन. इट वाज लाइक ये करके आई मैं, बिकॉज उसका ड्रामेटिक इफेक्ट इतना है. और किसी ने आपको, और द ब्यूटी ऑफ द डायरेक्टर्स कि उन्होंने आपको इतनी एफर्टलेसली आपसे काम कराया कि आपको पता ही नहीं चला कि आपने क्या कर दिया. ओके, लास्टली बता दें मैम, हमें कब देखने मिलने वाला है? 17 मार्च को हॉटस्टार VIP पे आपको स्पेशल ऑप्स देखने को मिलेगी. मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी प्लीज़ देखिए, बिकॉज हर चीज़ आप पहले डिसाइड कर लेते हैं. उसका पोस्टर खुद देख लें. आई एम श्योर आप एक नहीं 4 बार देखेंगे इसे. टॉकिंग अबाउट शेरपुर मैम, आई एम रियली एक्साइटेड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक्स. Okay, so Lakshmi ma'am, firstly, congratulations for the series. Thank you. The trailer looks so promising. Tell me about your character, how promising the character you played was for you. Not only the trailer, even the series is very promising, let me say that. And my character is beautifully written. It's has a lot of beautiful, delicate nuances. And the relationship which Himmat and Saroj have is just fantastic. I absolutely thoroughly enjoyed playing this. And I got a chance to work with KK. Which is, I think, phenomenal because he's such a big actor and he's got an immense body of work. So I was a little nervous, but he's really, really very supportive and wonderful to work with. I loved it. Right. And also working with Neeraj sir, and we can expect something big from him, because Not can, it is, when it's Neeraj Pandey, it's only big and it's only mammoth and it's spectacular, like you said in the trailer, visually and content-wise. It's going to be a blockbuster. And आपने अपनी शिकायत तो already कह दी है. Exactly, कर लिया, right? So I hope he takes it very seriously. I'm going to take him up for it. Okay, so second season वाली बात आपने कही है, तो कुछ बात नहीं जी, मैंने ऐसे ही कहा. मेरा इंटरेस्ट देखते हुए मैंने ये कहा. मुझे नहीं पता whether season 2 is coming or no, but I wanted to do action, so I mentioned it. That's it. That's it? Yes. Okay, so tell us something about, how was it working with the other cast, multi-starrer cast. Yes. So how much fun it is to work with multi See, for us it's fun because it's we are so many of us, but for the director, who's the main anchor of the ship, oh my God, he goes crazy because we are so many of us. And but it was wonderful. It's got some all of them are phenomenal in their own respective spaces, and it was really, really good. He had a tough time. Neeraj ji and Shivam sir had a tough time to control everybody. And also we are seeing you after a long After very long, yes. So after almost
2.5, I think 3 years. Yeah, that's a long time. What, Yeah. what made you wait so long, you know? We really missed you. Thank you. That's so sweet of you. I feel very overwhelmed and feel very happy when I receive this kind of love. And no, it was not a conscious decision. It was just that, you know, my body of work has always been really, really strong, and I want to maintain that as much as possible. So the break was not conscious. It's just that I didn't get anything interesting enough for me to say yes to. Though I was offered a lot of work, but I consciously said, I'll wait. And thank God I waited, because had I not been free, I wouldn't have had this opportunity. So, you know, everything works for the best, I guess, at the end. कहीं आप भी बिजी रहे कि राम सर काफी वेट लॉस किया और काफी सोशल मीडिया पे उसमें मैं नहीं बिजी थी, वो बिजी थे, बिकॉज वो डाइट कर रहे थे और वो मैंने कुछ भी नहीं हेल्प की. आपने तो पूरा बताया रहेगा कि ये करना है वो करना है. बिल्कुल नहीं. आपको लगता है उनको देख के कि वो किसी की सुनते हैं? नहीं ना. नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग. नो, ही इज डन इट ऑल बाय हिमसेल्फ. उनके खुद का मोटिवेशन था. उन्होंने तय किया था कि उन्हें करना है, तो इसलिए उन्होंने किया. लोग पहचान नहीं पाए जब फर्स्ट फोटो आया तो. जी, मैंने भी नहीं पहचाना. नहीं तो इतना मोटिवेशन कैसा है, मतलब थोड़ा सा अगर कुछ हमारे दर्शकों को बताए. राम सर तो बात राम सर तो बात नहीं करते हैं ना. हाँ, तुम मुझसे बुलवा लो. अच्छा है. नो, एक्चुअली ये उन्होंने तय किया था कि पर वो इतना बिजी थे काम में कि इतना ड्रास्टिक वेट लॉस करने के लिए उन्हें ज़्यादा वक्त चाहिए था. तो उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि वो 1 साल तक कोई काम नहीं करेंगे, और उन्होंने वो किया और उसकी वजह से वो कर पाए. अभी इस साल उनके इतने सारे रिलीजेस हैं, आप देखेंगे तो इस साल वो ऐसा नहीं कर पाते थे. तो जो टाइम था 1 साल उन्होंने रखा था अपने फिटनेस के लिए, और आई थिंक इट वाज ड्यू, इट वाज ओवर ड्यू. इतनी आपने हेल्प की. You know, although you are saying कि मैं कहीं नहीं थी, but you also fit behind the motivational. See, when you're not working, you have no choice, but you have to be fit. I mean, you know, so. आपने क्या था, मतलब सलाह कुछ दी कि नहीं, मतलब ये खाने में मदद की रहेगी, ये बनाती नहीं. कपूर को खाने में सलाह कोई नहीं दे सकता. वो खुद करते हैं और वो खुद मोटिवेट अपने आप को करते हैं. मैंने सिर्फ उन्हें सपोर्ट किया था, बिकॉज लोगों को लगता है कि वेट लॉस करना या जो राम ने किया है वो बहुत आसान है. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मेहनत, जो लगन, जो फोकस उन्होंने दिखाया है, मैं फ़िटनेस फ्रीक हूँ, मैं भी नहीं कर सकती. क्योंकि वो 1 साल तक मतलब उन्होंने इतना डेडिकेशन दिखाया है कि हम लोग सब हैरान रह गए हैं, मेरे बच्चे, मैं. और ही हैज़ रियली इंस्पायर्ड मी एंड इंस्पायर्ड ऑल ऑफ अस. सो इट्स अमेजिंग. You know, it's been very, very tough for him, very, very tough, and we know what he has gone through. And let me give credit to my children, because they have really supported him in this journey. Because family के लिए बहुत tough होता है when one person is going through such a focused weight loss. It's very tough. We didn't make any plans to go out. We couldn't eat outside and all, because he was so motivated that it was tough even for my kids. So एकता मैम ने भी ट्वीट की थी, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? मतलब एकता मैम भी काफ़ी हैरान हो गई थी. ये ड्यू था, ये करना ही था उन्हें. आज नहीं तो कल ये होना ही था, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम फॉर हिम टू लूज वेट, एंड ही इज़ डन इट. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Okay, so firstly, congratulations. The trailer looks so promising. Tell us something about your character and how promising the character is for you. If you've seen the trailer, he's an agent जो शेफ के अवतार में है. I think he's one of the most layered characters of the series. वो आप देखेंगे तो समझेंगे. शेफ भी है, आपने देखा तो मार धाड़ भी कर रहा है, और कुछ और 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड हीरो करता है. सो नीरज सर के जो सबसे अच्छा होता है फिल्म्स में, हर एक कैरेक्टर स्ट्रांगली एज्ड होता है. तो हम पांचों एजेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट अपनी अपनी जगहों पे है. सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. And especially playing the agent, how much the process? What was the process you went through to play this character? सबसे पहले मैं साथ में तानाजी कर रहा था. आई वाज प्लेइंग वन ऑफ द मेन गाइज इन तानाजी. तो वहाँ पे मैं तानाजी की जान बचा रहा हूँ और सैफ के खिलाफ प्लानिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं देश को बचा रहा हूँ. सो द प्रोसेस वाज फन. आप सोचते हैं ये हिस्टोरिकल है और एक वो है, और दोनों अपने अपने लेवल में. तानाजी 150 करोड़ की फिल्म है और ये सबसे बड़ी वेब सीरीज़ है. तो मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसे मौका मिला.
एक्शन की तैयारी करनी पड़ी। इनफैक्ट अगर आपने प्रोमो देखा तो आपने देखा होगा वो जेम्स बॉन्ड स्टाइल में मैं मार रहा हूँ एक अंग्रेज़ को, और मुझे नहीं पता था कि मैं एक्शन में इतना अच्छा, मैं फिल्म्स में एक्शन कर चुका हूँ, मैं सीरियल्स में एक्शन कर चुका हूँ, लेकिन अब जब मैंने सीरियल रफ़ी अली के साथ एक्शन किया तो मुझे लगा कि एक्शन मुझे सीरियसली परस्यू करना चाहिए, शायद मैं अच्छा बड़ा नाम बन सकता हूँ एक्शन। तो लर्निंग नाउ एक्शन, और बहुत बहुत मज़ा आया है करने में। शेफ का कैरेक्टर प्ले कर जी। रहे हैं तो कुछ खाना बनाना सीखा? खाना मुझे बनाना ना कभी कभी अच्छा लगता है। मैं खाने का, पंजाबी हूँ मैं, टिपिकल दिल्ली से हूँ, खाने का बहुत शौकीन हूँ। मैं ऐसे वाला हूँ कि मैं सोचता हूँ कि यार रात को क्या खाना है दिन के टाइम पे, और सुबह सोचता हूँ दिन में क्या खाना है, और उसके ऊपर अपने आप को फिट भी रखना पड़ता है। तो वर्कआउट करते हुए भी सोच रहा था कि यार थोड़ा एक्स्ट्रा कर लूँगा, रात को खा लेता हूँ। और खाना बनाने का, कुछ चीज़ें बनाने का बहुत शौक है, तो आई थिंक वो मैंने अच्छी तरह यूज़ किया। कटिंग वटिंग थोड़ी यूट्यूब वीडियोज़ देखे कि स्टाइल से कट करना, घर में तो हम ऐसे भी काट लेते कई बार। तो कटिंग वटिंग का कुछ देखा, और कुछ तरह की डिशेस मुझे बनाने का शौक था, जो मैंने कुछ सीन्स देखेंगे तो उसमें मैंने वो किया है। काफ़ी मज़ा आया है। ओके, जैसे कि एक ना एक याद होती है इस वेब सीरीज से जुड़ी हुई होती है, तो आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो आपको हमेशा याद है? देखिए, हमने सारे एक्टर्स को सुना होगा, हम नीरज पांडे जी के साथ बहुत खुश हैं, सबने आके बोला होगा। मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन। तो मेरे लिए इट्स वाज अ ड्रीम कम ट्रू जब मुझे ऑफर हुआ था, और ऑन द सेट उनके अंडर काम करना वाज अ ड्रीम कम ट्रू। एक फ़ैन अगर अपनी ड्रीम पूरी कर रहा तो कैसा फील करेगा, सो दैट वाज द होल फील। यू वर्क विद अजय सर नाउ कैफ, और यहाँ पर मतलब कितना क्या एक्सपोजर मिला आपको? देखिए, ताना जी का आज तक मुझे, आपके प्रेस से मुझे इतने लोग आ रहे हैं, यार इतना बढ़िया रोल था आपका, हम आपको मैसेज किया, आपने पढ़ा। ताना जी हैज़ ओपन अनदर डोर फॉर मी। मुझे जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ताना जी के लिए मिला था कि मेरी मराठी मेड से, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं, कि भैया अगर आप नहीं होते सेकेंड हाफ में 10 मिनट में फिल्म खत्म हो गई थी। सेकेंड हाफ के 10 मिनट में आपने ताना जी को 2 बार बचाया, फिर उनके साथ प्लान करके उदय भान को हराया, तब जाके तो कोंडाना मिला है। तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट में जहाँ लोग छोटे छोटे बड़े बड़े एक्टर्स 2-2 सीन करते हैं, आप फुल फ्लेज प्राइमरी कास्ट प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद आप अपने सबसे फेवरेट डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मैं सुधीर मिश्रा स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग से भी आता हूँ, ये साली ज़िंदगी इरफान खान के साथ, इरफान भाई के साथ ऑपोजिट काम कर चुका हूँ, फिल्म कर चुका हूँ अर्जुन रामपाल सनी देओल में हीरो। तो कास्ट से ज़्यादा अच्छे एक्टर्स, जो ये इतने सारे अच्छे एक्टर्स के साथ जो काम करने को और इनसे सीखने को मिलता है। लाइक अजय सर के साथ मेरा जो सीन था, आंखों में हम दोनों डाल के 5 मिनट का सीन था, जिसमें 1 मिनट हम दोनों एक दूसरे की आंखों में गेज कर रहे होते हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? अजय देवगन के साथ आंख डाल रहे हो आप, सैफ जैसे कैरेक्टर जो इतने बढ़िया एक्टर्स के साथ कर रहे हो, और यहाँ पे हम नीरज पांडे जी के साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। ओके, मुझे सबसे पहले बताइए कि क्या कुछ हमें इस वेब सीरीज में आपका कैरेक्टर दिखने वाला है, और किस तरह की तैयारी की आपने वेब सीरीज के लिए? I am playing the character of Avinash. He is the sniper. This is the first time that actually in Indian cinema that कि हम स्नाइपर को देख रहे हैं, जो एक बहुत इंट्रीगिंग रोल रहता है। आई थिंक आपने इंटरनेशनल फिल्म्स में देखा होगा, फॉरेन फिल्म्स में, कि एक स्नाइपर की बड़ी एक मिस्ट्री होती है, लॉट ऑफ मिस्ट्री अटैच टू अ स्नाइपर। जब मैं देखता था मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि मतलब दे डू एवरीथिंग वेरी एजी। तो दिस इज़ एनीवेज अ वेरी एजी सीरीज़, थ्रिलर। और जब एक कैरेक्टर आता है तो यू इन दिस सीरीज़ यू गेट टू नो दैट कुछ होने वाला है। So it is that the moment he comes in, you know that he's going to disrupt things. He's going to, कुछ होने वाला है, आपको समझ में आ जाता है जैसे इस कैरेक्टर की एंट्री होती कभी भी। तो इज़ अ वेरी एक्शन पैक्ड रोल। तैयारी ये थी कि मैं पार्कोर करता था बीच पे, फिल्मों के बाद भी बड़ा ऑकवर्ड लगता था, मगर आई वांटेड टू लर्न पार्कोर। एक्चुअली सिरिल रफीली जो हमारे फिल्म के एक्शन डायरेक्टर हैं, उनकी वीडियोस देख देख के मैं पार्कोर सीखता था। जब मैंने स्टार्ट किया था बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं थी, फॉर्मल ट्रेनिंग। तो मेरे साथ मेरे जो होते थे, एक्चुअली लर्न विद रिक्शा वालाज, और एक हमारा वो मैकेनिक था, तो हम एक्चुअली साथ में प्रैक्टिस करते थे। तो काफ़ी टाइम तक किया, हड्डियाँ तोड़ाई अपनी, तब जाके सीखा, और वो सब काम आया। और आई थिंक अभी आगे भी काम आएगा। अभी तो उन्होंने देखा कि मेरे जलवे देखे हैं थोड़े से, तो आई थिंक उनको थोड़ा वो यूज़ करेंगे सेकेंड सीरीज़ में ज़्यादा। सेकेंड सीरीज की बात हमने गौतमी मैम से भी सुनी है, आपसे भी सुनी है, प्लानिंग वगैरह कुछ चालू है? देखिए सब आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप कैसे रिसीव करते हैं, कैसे इनको हमें कितना प्यार देते हैं। जो आई होप कि हमारा हार्डवर्क वो डिज़र्व करता है, अगर करता है तो वीड लव टू। टॉकिंग अबाउट नीरज सर, उनकी फिल्म को या फिर दिस सीरीज, दे हैव ऑलवेज बीन लव्ड। जी जी जी, एग्जैक्टली।
what are your expectations from this series? देखिए नीरज सर का एक एक्टर के लिए ड्रीम होता है कि उनके साथ काम करे। मैं बहुत पहले उनसे मिलने गया था, तब 18-19 साल का बच्चा था वेडनेसडे के बाद। तो नीरज सर ने कहा थोड़े बड़े हो जाओ तब मेरे पास आना। तो मैं चला गया था ऐसे ही। तो बहुत स्वीट है, बहुत प्रोफेशनल है, एंड आई होप कि मैं उनकी हर फिल्म में हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा उनके साथ काम करते हुए। एंड आई होप ही फाइंड्स मी वर्दी एज एन एक्टर टू एक्चुअली गिव मी वर्क इन ऑल हिज फिल्म्स। ही इज जस्ट अ कंप्लीट डायरेक्टर। ऑन सेट्स ऑफ सेट्स उनका जो डिमीनर है एज अ पर्सन, आपने देखा कितने स्मार्ट हैं, कितने विटी हैं। तो उसमें एक इज़ अ कंप्लीट पैकेज टू वर्क विद हिम, टू वर्क विद शिवम सर। ही सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, टैलेंटेड पीपल। मतलब आई डोंट नो यार, मेरे बहुत अच्छी किस्मत थी कि उनके साथ काम करने के लिए मिला। ऐसे सच के थोड़े बड़े हो जाओ तब आना। जी। तो अब उससे पहले, इस सीरीज से पहले कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की आपने, या फिर was it- देखिए मैं एक्चुअली मेरे डेब्यू के बाद मैंने ज़्यादा ऑडिशंस दिए हैं। डेब्यू से पहले मेरा धोखा में डेब्यू होता है, उसके बाद मैंने ज़्यादा ऑडिशंस दिए हैं उससे पहले। तो जब नहीं होता तो नहीं होता, उसमें कुछ नहीं कर सकते। स्पेशली विद कितने वो स्टार सन्स आ गए और मतलब मेरे साथ इतने सारे लॉन्च हुए थे। टू फाइंड योर स्पेस इन दैट वाज सो डिफिकल्ट। तो विद द काइंड ऑफ PR दे हैव बिहाइंड देम एंड ऑल दैट, मेरे फैंस मुझसे पूछते हैं कहाँ हैं। तो आई वांट टू आंसर यू ऑल फ्रॉम दिस। आई एक्चुअली वाज वर्किंग वेरी हार्ड बट इट जस्ट दैट इट डिडंट फेल इन प्लेस। वो कंप्लेन करते रहते हैं कि ऐसा एक्टर वैसा एक्टर, स्क्रीन पे वी डोंट सी यू, वी सी दैट यू हैव टैलेंट इन एवरीथिंग। बट एक स्टार के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व, उनका PR, उनकी फैमिली, जो हमारे पास नहीं थी। बट एक परसिवरेंस थी और एक ड्रीम थी, और दोनों हमने नहीं छोड़ी। So, अब इसके बाद और फिल्म देखने मिलने वाली इंशाल्लाह आप होप कीजिए, ऐसा मत पूछिए कि देखने वाले हैं, आप होप कीजिए अगर आप। आई रियली होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, इंशाल्लाह। या थैंक यू सो मच। Okay, so firstly, congratulations. The trailer looks so promising. Thank How you. promising is your character for you to play? For that, you have to watch the show. But I'm sure people will love it because it's a lot of action. I'm doing a lot of action for the first time. I'm playing a secret agent for the first time. So it's been a very exciting journey and very satisfying journey as an actor. I've enjoyed every bit of it, and I'm sure you can see it from the trailer that the trailer looks very intriguing. People have loved it so far, and I'm sure when this will release, people will love it more. And this also, this avatar is never seen avatar of yours. Yes, yes. How difficult was it for you to play an action role for you? See, playing this character was not difficult, but doing action was very difficult. Like, because she's a very simple person, the character is very simple, but when it comes to her job, saving the country, when it comes to her job, she goes mad. She's like, okay, I will do whatever it takes to, save my country. So, yeah, that switch is there. Action bit was very, very difficult because we went for Krav Maga. It's a martial art. It's a form of martial arts, and we went for training for 3 months. And in that training, I had to actually, because I had to tell myself that I'm a very strong person. That's why I can beat the shit out of any, freaking terrorist. So I had to tell myself every day when I used to leave for the training, I had to, literally feed myself that I am strong and I can actually hit anybody when it comes to my job. So that thought, I used to keep repeating it to myself. It went into my subconscious mind, and what happens is when you start performing, even if you're not trying to prove anything, because it's there in your subconscious mind, it will show on your face. So that's how we used to train. And then of course for the action sequence, we train again for 20 days just before the shoot. Like 20 days before the shoot, we used to train the action for like 10 hours to get that body language right, which is the most difficult part. How confident did this role made you to, further play an action role in some movie or in any series? See, it's made me very confident in terms of doing action. Not only doing action, but also I feel much more stronger today because I am more committed to making myself fit. I'm more committed to myself to make myself stronger mentally and physically.
And you know, I don't know, but this show has inspired me a lot in that sense. I was always a weightlifter. I can pick up really heavy weights, but action is something कि भाई फटती है आपकी 2 मिनट करने से पहले आपको लगता है कि भाई गलती कर ली साइन करके मरने वाले हो तुम. तो वो दैट फियर, चोट भी लगी थी राइट हैंड पे खतरनाक, और उस सीक्वेंस से पहले सीक्वेंस के पहले शॉट में चोट लग गई थी. तो आई वाज लाइक शिट, गया काम खत्म हो गया, अभी मेरे को नीरज सर बोलेंगे किसको कास्ट कर लिया. तो वो दैट फियर इज ऑलवेज देयर. बट आई फील टुडे दैट good I did this web series because it's told me that if I can do action, you know, except for what I did before, how people said that this is what she can do. But I will now prove them wrong this time, but I can do action. And the kind of reports I'm getting, people are saying it's come out very well. But then again, that's for the audience to decide. But yes, I feel much stronger mentally and physically. And congratulations for both as well. Tell me, like, what kind of response are you getting from? So yeah. Box office collection also doing very well. So I have no comments on that. I have no comments on that. Yes. Are you disappointed? No comments on that. Why, ma'am? Like your expression, something happened wrong. I No. feel like that. No, I wouldn't want to comment on that. What Please, did next question. Karan Johar has done anything wrong? No, let's go for next question. Actually, you can share what happened wrong with you. No, I don't think it doesn't deserve any explanation. If you will not share, it will happen very wrong now. No, I'll share it when it's the right time. Not that Karan Johar has cut the scenes. No, I don't think I can answer that. Thank you so much. Yes. Okay, so besides this, you know, Yeah. tell us something more about this series, you know, working with a multi-starring cast. Yeah. How is it, you know, how much advantage or disadvantage it is to work with a multi-starring cast? No, there's no disadvantage. You enjoy. You working with so many people. You know, there's a huge cast and you have fun on sets. ऐसे लगता है कि हम सेट पे बड़ा मेहनत कर रहे हैं, पर हमने तो बहुत फन किया है. We were in Jordan, we were in Baku, we had fun. So there is no disadvantage. Advantage है in fact कि you know you get to learn from senior people, like there's KK sir, there's Divya, there's the people who have done good work before. So you learn a lot, and of course from Neeraj sir and Shivam sir I've learned so much. Although, you know, you don't want to talk about both, but you Yeah. know, talking about your character, Vandana, somewhere or the other, it's negative, you know, where you are seen as a positive character, but then there's a surprise with a negative character. Tell me, like, how comfortable are you playing the negative character? I'm very comfortable. I always would love to portray the darker side. You always have two faces, and we always show our positive face. We always show the brighter side. We never show our dark side. I am very interested in the dark side. I would love to explore that genre, the darker part of it. I was just saying earlier also, I would love to play a witch. I would love to play a possessive wife. I would love to play a psychotic character. I like, because it needs a lot of layering, and I love characters with layerings. I would love to explore those layerings, you know. So do you think somewhere or the other you haven't got that kind of role here because... Yeah, I don't think I've got something like that till now. I mean, and I haven't got any psychotic character or, a witch character. I would love to play a witch. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, so sir, सबसे पहले तो बहुत लोगों से सुना होगा आपने, congratulations, Thank you. बहुत ही promising है. और आपका कैरेक्टर हाँ जी, हाँ. आपका कैरेक्टर, अगर हम आपकी कैरेक्टर की बात की जाए तो बहुत ही सीधे साधे से दिख रहे हैं, लेकिन है बहुत ही बड़ा कैरेक्टर. टेल अस समथिंग मोर अबाउट इट. ये किरदार का नाम है हिम्मत सिंह, और वो चीफ एनालिस्ट है, RANW में काम करते हैं, और उनकी अपनी एक थियरी है जो एक पॉइंट के बाद किसी को विश्वास नहीं होता कि वो थियरी सही है या गलत है. लोगों को लगता है कि मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है ये हो, लेकिन वो लगा रहा उसमें 19 साल तक लगा रहा, और 19 साल के बाद क्या वो थियरी सच में निकलती है या नहीं निकलती, ये कहानी है. उस दौरान, क्योंकि 19 साल की जर्नी है, वो किस प्रकार से वो आदमी अकेला पढ़ने के बावजूद वो चीज़ पे लगा रहा, ये कहानी है. और इसका स्केल बहुत बड़ा है इस सीरीज़ का, जो आपको ट्रेलर में दिखाई देगा कि बहुत बड़ा है, और एक मैग्नम ओपस काइंड ऑफ फीलिंग आएगा आपको, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक इंडिया में उस प्रकार की वेब सीरीज़ नहीं आई है. तो प्लस नीरज पांडे की राइटिंग है जो बहुत ही टाइट है, बहुत ही उनकी राइटिंग में एक क्षमता ऐसी होती है कि सीरियस मामले में भी हल्का सा एक ह्यूमर आ जाता है.
तो वो सारी चीज़ें बहुत स्पेशल होती हैं हमेशा। तो मेरे ख्याल से ये लोगों को बहुत पसंद आएगा। जहाँ तक कास्ट एंड क्रू है, बहुत शिद्दत से काम किया हम लोगों ने, और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। यंग लग रहा है अभी? क्या यंग नहीं लग रहा हूँ क्या मैं? अभी होंगे लेकिन मतलब आप बहुत ही ज़्यादा यंग लग रहे हैं। जब भी नीरज सर का नाम किसी भी फिल्म या सीरीज के साथ में जुड़ता है तो एक्सपेक्टेशंस अपने आप बढ़ जाते हैं। आपके एक्सपेक्टेशंस इस सीरीज से कितने ज़्यादा? देखिए, मैं एक्सपेक्टेशन वाला आदमी हूँ नहीं। फल की इच्छा कम करता हूँ, कर्म किया जा करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरा कर्म है उसको मैं बहुत ही ऑनेस्टली और ट्रुथफुली पेश करूँ, और एक बार वो हो जाए, बाकी ऑडियंस के ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार से लोग उस चीज़ को लेते हैं। लेकिन इतना है कि हमने कोई मतलब यू नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड, तो हर चीज़ पे काम किया हुआ है और वो आपको सीरीज़ में दिखाई देगा। आप हंस रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं? ये मुद्दा जो है, ये अभी फ़िलहाल इस स्पेशल ऑप्स का मुद्दा नहीं है, तो हम स्पेशल ऑप्स के मुद्दा पे आते हैं बाद में। ओके, सो स्पेशल ऑप्स की अगर बात की जाए तो इट्स अ मल्टी स्टार, इतनी बड़ी कास्ट है, कितना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है एक एक्टर के लिए जब आप एक मल्टी स्टार फिल्म या सीरीज में काम करते हैं? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो किरदार निभा रहा हूँ, मैं उस इंसान को निभा रहा हूँ, तो मुझे उस इंसान को सही तरीके से पेश करना ये मेरा काम है, मेरा दायित्व है। तो एज एन ऑडियंस आपको लगता होगा कि ensemble है और ये है, हर किरदार जो इस स्पेशल ऑप्स के अंदर है उसकी अपनी एक भूमिका है और उसको निभाना बहुत ज़रूरी है सही से। और इस तरह से सभी लोगों ने अपने कैरेक्टर्स को उसी तरह से निभाया हुआ है, तो इसीलिए सब जोड़ करके आपको एक मैग्नम ओपस दिखाई देता है। लेकिन जब इस तरीके की सीरीज या फिल्म बनती है तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उठने की संभावनाएं होती हैं। जब ट्रेलर लॉन्च के साथ ही अभी का टाइम कुछ इस तरीके से लोग बहुत ही जल्दी ट्रेलर एक चीज़ उठ के आएगी कि बहुत बेहतरीन सीरीज़ है। फॉर श्योर। आपकी फिटनेस का मंत्र? मेरा कोई मंत्र नहीं है, मैं काम करता हूँ फिटनेस पे। तो मंत्र इतना ही है कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, और आप जहाँ तक मेंटल स्पोर्ट्स हैं वो मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, और फिज़िकल स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ। तो फिटनेस का राज वही है, और जितना आप अपने आप को एक तरह से दिया गया है ना आपको इसका सब कुछ, तो आप उसको ग्रांटेड मत लीजिएगा, तो उस पर थोड़ा काम करिएगा, आपको खुशी होगी खुद ही अंदर से, तो वो ज़रूरी होता है, और बस वही है। हर किरदार मेरे लिए अलग होता है, क्योंकि मैं किरदारों को निभाता हूँ, मैं रोल्स को नहीं निभाता। रोल्स बहुत सीमित होती हैं, 25,000 रोल्स होंगे, एक कॉप होगा, कोई रॉ होगा, फिर कोई प्रोफेसर होगा, कोई लॉयर होगा, वो सीमित है। लेकिन मैं इंसान को पेश करने की कोशिश करता हूँ, तो हिम्मत सिंह को पेश करने की कोशिश कर रहा था मैं इसमें। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हर इंसान अलग होता है इस दुनिया के अंदर, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाता है। वो इंटेंशन से नहीं कि मुझे कुछ अलग करना है, नहीं, मैं उस इंसान को अगर आप पेश करोगे तो अपने आप अलग हो जाएगा। हिम्मत सिंह के साथ तो मेरे आईने में हुआ था, जब मैं शूटिंग कर रहा था, जब आईना सामने आया तो मैंने कहा अच्छा ये हिम्मत सिंह है। लेकिन कोई और से नहीं हुआ ना, क्योंकि हिम्मत मैंने कहा कि एक ही हो सकता है हिम्मत सिंह। एक हिम्मत सिंह हो सकता है जो रॉ का हो, अगर हिम्मत सिंह नाम का बंदा रॉ में काम कर रहा हो, और एक हिम्मत सिंह है जो लॉयर हो, तो मैं लॉयर और रॉ नहीं परफॉर्म करता हूँ, मैं हिम्मत सिंह को परफॉर्म करता हूँ। Thank you so much. Thank you.